Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. This is All India Radio. Good evening and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Gaurang Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद रहेंगे वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ गौरव। Thank you, Amit, and welcome to the program, Puneet. A quick look at the headlines. Domestic markets witnessed gains of about 1.5%. Sensex closes above 60,800 points. Nifty settles above 17,850 level. SBI Q3 profit jumps 68.5%. Bank of Baroda profit rises 75%. Rupee appreciates by 34 paise against the dollar, and global crude prices rise to trade around $81.93 per barrel. आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर बाजार में लगभग 1.5% की तेजी। सेंसेक्स 8,800 और निफ्टी 17,850 के स्तर से ऊपर दर्ज हुआ। तीसरी तिमाही में स्टेट बैंक के शुद्ध मुनाफे में 68.5% की भारी बढ़ोतरी और बैंक ऑफ बड़ौदा के शुद्ध मुनाफे में 75% की भारी बढ़त। डॉलर के मुकाबले रुपया 34 पैसे मजबूत हुआ और वैश्विक बाजारों में कच्चा तेल $81.93 प्रति बैरल के स्तर पर दर्ज हुए। वैश्विक बाजारों के विपरीत घरेलू शेयर बाजार आज मजबूती के साथ खुले। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.5% के उछाल से 910 अंक बढ़कर 60,842 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.4% की बढ़त से 244 अंक बढ़कर 17,854 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि बीएसई मिड कैप सूचकांक में कोई बदलाव नहीं हुआ, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में लगभग 0.5% की गिरावट दर्ज हुई। Domestic equity markets opened higher today, bucking mixed global cues. The Sensex and the Nifty today recovered and logged gains of about 1.5%. Index of top 30 companies at the Bombay Stock Exchange, Sensex, ended above the 60,800 point level. The index of top 50 companies at the National Stock Exchange closed above the 17,850 level. The Sensex climbed 910 points or 1.5% to finish at 60,842. The Nifty 50 also rose 244 points or 1.4% to finish at 17,854. In the broader market at the BSE, the mid-cap index remained almost flat and the small-cap index slipped 0.5%. In the Sensex pack, 27 companies posted gains while 3 witnessed losses. Titan was the top gainer as it rose 6.9%. Bajaj Finserv gained 5.2% and Bajaj Finance added 5.1%. HDFC Bank surged 3.5% and HDFC rose 3.2%. On the other hand, Wipro slipped 0.3%. Tech Mahindra and HCL Tech both declined 0.2% each. In sectoral indices at the BSE, 12 sectors gained while 8 logged losses. Consumer durable sector index gained 2.6%, followed by financial services, which surged 2.15%. The banking sector added 2%. On the other side, utilities tumbled 2.8% and power sector declined 2.2%. Healthcare sector plunged 0.9%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,344 companies gained while 2,200 fell. Shares of 124 companies remained unchanged. नजर डाल लेते हैं कुछ नतीजों पर। 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हुई तीसरी तिमाही के दौरान भारतीय स्टेट बैंक का शुद्ध मुनाफा 68% बढ़कर 14,205 करोड़ रुपए हो गया। पिछले वर्ष की समान अवधि में यह राशि लगभग 8,432 करोड़ रुपए थी। Bank of Baroda today declared the highest ever quarterly net profit of 3,854 crore for the third quarter ended December 2022, which is
up by over 75% from the year ago. Shares of Bank of Baroda were trading more than 3% higher in Friday's afternoon deals on the BSE. The public sector lender's interest income rose to rupees 23,540 crore from rupees 17,963 crore a year ago. पुनीत, किस तरह से आते हैं शेयर बाजार में आज की स्थिति को? अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो 2200 कंपनियों के शेयरों में गिरावट है, वहीं 1344 कंपनियां ही जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी स्थितियों को बचा पाने में रही हैं। क्या माना जाए, सिर्फ एक कंपनी के जो स्थितियां चल रही हैं उसकी वजह से पूरे बाजार का स्थिति ऐसी रही या कुछ और कारण? अमित, देखिए, आज का बाजार बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि जैसे आपने कहा कि पर्टिकुलर कॉर्पोरेट ग्रुप को लेकर जो चिंताएं थी बाजारों में, हमने देखा पिछले कुछ दिनों से काफी उसका असर पूरे बाजार पर पड़ रहा था। और हालांकि मैं ये कहूंगा कि यूनियन बजट बहुत अच्छा था, उसमें काफी नई इनिशिएटिव थे, काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट थी, लेकिन मार्केट प्रॉपरली उसको एक तरह से आप कह सकते हैं रिएक्ट नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ दिस वरीज। पर आज हमने देखा एक तो कि वो थोड़ी सी उस स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ और मार्केट में उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। हमने देखा जो बड़ी कंपनियां हैं तौर से फाइनेंशियल सर्विसेज में, आप देखिए बैंकिंग क्षेत्र के शेयर्स में काफी अच्छी प्रदर्शन था आज, पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक्स में। जो निफ्टी बैंक इंडेक्स है वो भी काफी बढ़ा। तो मैं कहूंगा कुल मिलाकर उन चिंताओं से उबरकर आज बाजार में हमने बढ़त देखी और मुझे लगता है कि ये यहाँ से आने वाले समय के लिए एक अच्छा वो है, क्योंकि अब बाजार में जो पर्टिकुलरली जो बड़े इकोनॉमिक रिलेटेड सेक्टर्स हैं, बैंकिंग का मैंने जिक्र किया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, आपने टाइटन आज बहुत बड़ी बढ़त हुई, जो कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक है वहां पर हमने बढ़त देखी। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा संकेत है और आने वाले टाइम में हम बेटर ट्रेंड्स देख सकते हैं। एफआईआई की सेलिंग अभी तक बाजार में बहुत रही है, मार्केट ने उसको भी नेगेटिवली रिएक्ट किया है काफी, तो मुझे लगता है वो भी अब कुछ कमी आने की उम्मीद है उसमें। Puneet, now we're looking at the budget is also now being discussed. It's out. A lot of feedback is coming. The market has responded at least partly to the budget now, and more will follow and come in. What are some other factors that we need to keep in mind or keep a lookout for, which are likely to affect, at least in this financial year till March, the market? So, if you really see, the market in the long term always reacts to economic fundamentals. In the short term, it does deal with a lot of short-term concerns, a lot of transitory issues, so to say. But in the longer term, it is the economic fundamentals of the country which are important for determining the trends. So I think if you look at the numbers that have come out in the budget, if you look at the announcements, the policy initiatives, I think we are well on course to see a very significant increase in India's GDP, in India's earnings over the next 4-5 years, and that is a trend which the budget has kind of defined. So my own sense is that the investors in the market will largely look at the broader economic trends in terms of fiscal deficit, which is on course to coming down, kind of capex which the government has planned, kind of initiatives that we have taken in terms of development. So I think those things are more important for the market, and that is what the markets will really look at in terms of consumption, in terms of capex. These are the things which will really matter. I think one of the fundamentals you spoke about, which is implied in virtually every other fundamental, is also, employment opportunities, job creation. How do you think this budget will actually, make that possible in a better manner at a higher level? And will we actually see a translation? Because we know that we are creating jobs, but are they actually also resulting in employment? So, essentially, if you see, employment is directly related to the kind of capex or capital expenditure that the government undertakes. Now, budget is an exercise where you raise revenues and then you spend those revenues for revenue expenditure, that is for salaries and things like that. But also the government has been able to spearhead a drive to increase in the capital expenditure in the economy. We know that this budget has laid out highest ever capex of more than 10 lakh crores.
I think that is where the jobs are really created. So one, of course, is the government's role in creating jobs, particularly in the infrastructure sector and things like railways, where you make investments, and it's the largest employer. And also, the private sector must have enough initiatives or enough incentives to carry forward its expansion and to employ more people. So I think this budget really takes into account both these steps. It looks at capital expenditure by the government, at the same time enough policy initiatives to promote investments by the private sector. I think that is the great message that we've got from this budget. पुनीत, अगर कुछ नतीजों पर नजर डाल लें तो स्टेट बैंक के जो नतीजे हैं तकरीबन 68.5% बढ़ा है उसका शुद्ध मुनाफा, अगर एक साल के पहले के मुकाबले बात करें। और वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा कहीं पिछले काफी दिनों में बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है। क्या ये माना जाए कि बैंकिंग क्षेत्र से इस तरह के नतीजे प्रत्याशित ही थे, उम्मीद से भी भरे थे, और इसका लाभ भी आज शेयर बाजार को मिला है? और आने वाले जो सोमवार से नया दिन शुरू होगा वहां पे हम पिछली जो इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं जिसके कारण पूरा शेयर बाजार थोड़ा सा घबराया हुआ सा नजर आ रहा था, वहां वापस से हम वही पुरानी मजबूती देखने को हमको मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत और कंपनी जगत के नतीजे भी धीरे धीरे आएंगे और ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि नतीजे बेहतर होंगे। आपने बिल्कुल सही कहा अमित। अनफॉर्चुनेटली एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर की जो न्यूज फ्लो है उसने मार्केट नैरेटिव को अभी तक काफी डोमिनेट किया है, जबकि मैं ये कहूंगा कि वो ओवरब्लोन कंसर्न्स हैं, उससे पूरे व्यापक बाजार पर कोई बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म असर नहीं पड़ेगा। शॉर्ट टर्म डेफिनेटली पीपल हैव कंसर्न्स, बट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। खासतौर से अगर आप देखें तो इंडियन बैंक्स के जो नतीजे आए हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के खासतौर से, वो चौंकाने वाले हैं। मुझे उम्मीद थी कि बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, लेकिन हमारी उम्मीदों से भी बेहतर रिजल्ट आए हैं। तो सबसे बड़े बैंक्स हैं, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, करीब 15,000 करोड़ का प्रॉफिट एक क्वार्टर में आता है। ओवरऑल प्रॉफिट पूरे साल का करीब 60,000 करोड़ हो सकता है। तो इससे आपको आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी कंपनी, बिकॉज ये लार्जेस्ट प्रॉफिट है एक तरह से आईटी कंपनीज के अलावा जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि और दूसरा देखें बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये सब बहुत बड़े बड़े बैंक्स हैं। 20 लाख करोड़ से ऊपर का ग्लोबल बिजनेसेस है इन बैंक्स का। तो आप ये कह सकते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र की जो प्रदर्शन है एक तो खुद अपने आप में वो बहुत अच्छा है, उससे हमको कॉन्फिडेंस मिलता है। दूसरा, जो बैंक हैं वो पूरी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ को दर्शाते हैं। अगर बैंकिंग क्षेत्र अच्छा कर रहा है तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और आने वाले टाइम में वो और बेहतर होगी, क्योंकि बैंक्स गाइड कर रहे हैं फॉर बेटर परफॉर्मेंस नेक्स्ट ईयर। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन पूरे मार्केट को इन्फ्लुएंस करेगा आने वाले टाइम में। और आपने जैसे कहा कि नेक्स्ट फ्यू डेज में हम देखेंगे कि बैंकिंग क्षेत्र जो है वो लीड करेगा पूरी मार्केट की परफॉर्मेंस को। तो उम्मीद ये करें कि जो सोमवार से शुरू होने वाला कारोबारी सत्र है उसमें हम एक नई दिशा की और तरह से आगे बढ़ने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि जैसा आपने अभी कहा कि जो केंद्र सरकार ने जो बजट में इस तरीके का जो निवेश की योजना बनाई है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 10 लाख करोड़ से ऊपर है, अगर उसमें सिर्फ रेलवे का भी देखें तो 2,40,000 करोड़ रुपए है। और अभी भी इस तरह की सूचनाएं थी कि तकरीबन 7,000 किलोमीटर की नई लाइन बनेगी, सारे कोचेस को बदलने की बात है। ये पूरी अर्थव्यवस्था को कितना गति देता हुआ लगता है, क्योंकि अगर हम ढांचागत क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अगर हम बड़ा निवेश करते हैं तो सीधे तौर पे वहां से उस निवेश से हमें रोजगार के साधन भी उपलब्ध होते हैं, हमारा ढांचागत सुविधाएं भी बेहतर होती हैं, व्यापारिक की संभावनाएं निश्चित तौर पे बढ़ जाती हैं। क्या मानते हैं कितना बड़ा बूस्ट इन सारी सूचनाओं से होने वाला है? अमित, देखिए, कोई भी बजट की मैं ये मानता हूं अचीवमेंट तब होती है जब वो कुछ पैसा स्पेयर कर पाए, फाइनेंस मिनिस्टर पैसे स्पेयर कर पाए इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए, हर बजट में हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, टैक्सेस कलेक्ट करते हैं और फिर उसको खर्च करते हैं सब्सिडीज के ऊपर, सैलरीज के ऊपर, जैसे हम कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। लेकिन अगर फाइनेंस मिनिस्टर इसके बीच कुछ पैसा स्पेयर कर पाए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर सकें, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, खासतौर से क्योंकि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा इन्वेस्ट करती है, तो वो बहुत एक अच्छा बजट हम मानते हैं। तो और अगर आप देखें तो इस बजट में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर
फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवेज के लिए 2.5 लाख करोड़ करीब करीब इन्वेस्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि तो शॉर्ट टर्म में जीडीपी ग्रोथ तो उसका फायदा है ही, एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी ग्रोथ, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है, यदि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करे बिना इतनी बड़े पैमाने पर ये पॉसिबल नहीं है। तो और रेलवेज का तो खास मुझे लगता है कि उसमें रोल रहता है, क्योंकि रेलवेज में हम एम्प्लॉयमेंट की हमने बात करी। दूसरा, पूरे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, इसमें बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। हम देख रहे हैं काफी अपग्रेड कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को रेलवेज के, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरी ओपिनियन में। एक और संक्षेप में, जिस तरह से मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन के फ्रंट पे भी हमें काफी राहत की सूचनाएं मिलती रही हैं, ऐसे दौर में क्या रिजर्व बैंक अभी रेपो रेट या रेपो दर में कुछ बदलाव या छेड़छाड़ करेगा? अमित, देखिए, जो अब लेटेस्ट डेटा है भारत में भी और यूएस में भी, तो मुझे लगता है कि हम ये जो इन्फ्लेशन साइकिल है इसके करीब करीब अंत में हम पहुंच गए हैं। आने वाले टाइम में कुछ ही महीनों में आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन विल नॉट बी अ चैलेंज फॉर द इकोनॉमी। और इनफैक्ट यूएस फेडरल रिजर्व ने भी इस बात को इंडिकेट किया है कि अब वो इन्फ्लेशन को बहुत बड़ा चैलेंज नहीं देखते। तो मुझे लगता है भारत, जो कि पहले ही इन्फ्लेशन को काफी काउंटर कर चुका था, मुझे लगता है कि हमारे लिए इन्फ्लेशन अब कोई चैलेंज नहीं होगा और आरबीआई डेफिनेटली अब इंटरेस्ट रेट्स में पॉज करेगा और यहाँ से बहुत ज्यादा इंक्रीज की मुझे कोई आशंका नहीं है। Puneet, you earlier spoke about capital expenditure. Now, for a growing economy like India, we still know that we are to a great extent, and coming back to job creation, that government expenditure for creating jobs, whether it's for infrastructure or otherwise, is a lot. What do you think is a healthy proportion or a basis? Is there some kind of a thumb rule that for a healthy economy, this should be private sector job creation and this should be the government sector investment for that? Not really, because as you can, and it has been established economic theory that whenever there is an economic slowdown or there is a challenge in terms of financials, the government plays the leading role in capital expenditure. In fact, that is the basis of Keynesian economics. Okay. Private sector is not able to drive investments. Right. Government drives investment. But when economy returns to normal growth, then private sector leads. And in terms of investments and employment. So that means we are now coming to the second thing, the growth phase, when the private sector is now going to be incentivized. That's right. Because during pandemic, it was the government which led the incentives and initiatives for employment. Now I think the private sector will take lead. Right. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 34 पैसे की बढ़त से 81.83 प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। हालांकि डॉलर इंडेक्स मामूली गिरावट से 101.6 के स्तर पर दर्ज हुआ। पुनीत, काफी दिनों से हम बात करते थे, अगर डॉलर इंडेक्स जहां 112 तक पहुंच गया था, आज 101 के आसपास आ गया है। वहीं रुपए में भी थोड़ी सी इसकी मजबूती का असर साफ नजर आ रहा। 82 रुपए से नीचे आ गया है डॉलर के मुकाबले रुपया। कितना मजबूत संकेत मानते हैं अभी भी डॉलर और ये रुपए का जो संबंध है, कहाँ नजर आता, किस तरफ ठहरता हुआ नजर आता? क्योंकि हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो हमारी आईटी कंपनियां हैं, जिनकी मुख्य आय का स्रोत ही जो अगर डॉलर मजबूत रहता है या रुपया कमजोर रहता है, उनको बड़ा सीधे तौर पर फायदा मिलता है। तो अमित, देखिए, हम जो डॉलर रूपी लेवल है, ये पूरा असर पड़ता है जो ग्लोबल लेवल पर डॉलर इंडेक्स है उसके ऊपर। आपने बताया कि करीब करीब 10% से ज्यादा अब डॉलर इंडेक्स नीचे आ गया है। और जैसे जैसे डॉलर में हमने गिरावट देखी है, वैसे ही हमने देखा कि थोड़ी मजबूती आई है बाकी कमोडिटीज में जो बिल्कुल स्लम्प कर रही थी, वहां थोड़ा पिकअप हुआ है। गोल्ड में पर्टिकुलरली तेजी आई है डॉलर के नीचे आने से। और डॉलर की जो वीकनेस है, मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स अब अमेरिका में नहीं बढ़ेंगे, तो डॉलर इंडेक्स अब ज्यादा ऊपर बढ़ने की मुझे उम्मीद नहीं है। और बल्कि आप मुझसे पूछे तो मुझे लगता है डॉलर इंडेक्स और नीचे आएगा अगले कुछ वर्षों में। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जो अभी रूपी डॉलर लेवल है 81-82 का, ये मेंटेन रहेगा। देखिए, आरबीआई कोई पर्टिकुलर लेवल टारगेट नहीं करता है, पर आरबीआई चाहता है कि जो लेवल है वो स्टेबल रहे, ताकि इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स जो है वो अनसर्टेनिटी में ना रहे। तो आरबीआई की जो पॉलिसी गोल होता है वो स्टेबिलिटी ऑफ द करेंसी होता है, रादर देन अ पर्टिकुलर लेवल। तो मेरा अपना अनुमान यह है कि 80 रुपए के आसपास डॉलर और रुपी का जो एक्सचेंज रेट है, ये काफी दिनों तक रहेगा। आने वाले कई वर्षों तक हो सकता है कि ये लेवल यही स्टेबलाइज करे। जी,
नजर डालते एशियाई शेयर बाजार पर। एशियाई बाजारों में आज मिला जुला रुझान रहा। सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम सूचकांक 0.6%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.5%, जापान का निक्केई 0.4% की गिरावट से बंद हुआ। हालांकि हांगकांग के हैंगसेंग में 1.4% और चीन के शंघाई कमोडिटी सूचकांक में 0.7% की गिरावट भी दर्ज हुई। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में जहां लंदन का शेयर बाजार मामूली बढ़त में नजर आया, वहीं फ्रांस और जर्मनी के शेयर सूचकांक 0.3% से 0.7% तक की गिरावट के दायरे में कारोबार करते नजर आए। A quick look at the US markets. The Nasdaq and S&P 500 ended higher yesterday and touched roughly 5-month high as a more dovish than expected message from the Federal Reserve Chair Jerome Powell boosted equities, and Meta platform shares rose on rigorous cost controls. The Dow slipped, dragged down by declines in some big healthcare stocks. The Nasdaq Composite Index surged 3.2%. And the S&P 500 gained 1.5%. On the other hand, the Dow Jones Industrial Average declined 0.1%. We quickly move on to oil prices. Oil prices were steady today but were on track for a second week of losses as the market awaited further signs of fuel demand recovery in China and the price cap on Russian oil products. In intraday trade, Brent crude was trading at $81.93 per barrel, while WTI crude price was at $75.67 per barrel. पुनीत, मोटे तौर पे अगर एशिया बाजार की हम बात करते हैं तो एशियाई बाजारों से कुछ मिले जुले रुझान रहे, लेकिन वहीं अमरीकी बाजार से भी कुछ अच्छे संकेत मिलते हुए नजर आते हैं। किस तरह से आंकते हैं, क्योंकि इसका बाद हमें सीधे सीधे ये देखना पड़ेगा कि जो वैश्विक बाजारों में कच्चा तेल अपना हिलडुल मचा रहा है वो किस करवट बैठेगा। तो अमित देखिए, इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट काफी एक टर्मोइल के फेज से निकल रही है, क्योंकि पिछला वर्ष हमने देखा कि जब इंटरेस्ट रेट्स बहुत तेजी से यूएसए में बढ़े, उसका पूरा असर विश्व की स्टॉक मार्केट्स में भी पड़ा, करेंसी मार्केट्स में भी पड़ा। और इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो छोटी मोटी अर्थव्यवस्थाएं थी वो तो पूरी चरमरा गई उसके प्रेशर में, और लेकिन भारत ने बहुत अच्छा उसको नेविगेट किया पूरे क्राइसिस को। अब वो फेज थोड़ा बदल रहा है। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट थोड़े थम रहे हैं, वहां पर आने वाले टाइम कम तो नहीं कहूंगा मैं जी, लगता है कि वहां इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहेंगे। तो जो दूसरी इकोनॉमीज हैं जहां पर फंड फ्लोज बहुत ज्यादा कम हो गए थे या अफेक्ट हो रहे थे, वहां पर थोड़ा स्टेबिलिटी आएगी। भारत में भी मुझे लगता है कि एक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ेंगी, दूसरा जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ है, अगर हम 7% ग्रोथ की बात करते हैं तो वो बहुत ज्यादा निवेशकों को अट्रैक्ट करेगी इंडिया में, और वहां निवेश आएगा। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जो इमर्जिंग मार्केट स्पेस है, यानी भारत है या इस तरह की इमर्जिंग मार्केट्स हैं, वहां पर एशिया में हमने बात करी, वहां पर अब स्थितियां सुधरने की मुझे उम्मीद है। और ये जो वर्ष है 2023 का, हालांकि कोई बहुत ज्यादा तेजी नहीं आएगी, पर मुझे लगता है कि ये स्टेबिलिटी का साल रहेगा। और इमर्जिंग मार्केट्स में भी आप उसी प्रकार से देखेंगे, थोड़ा फंड फ्लोज देखेंगे, थोड़ी स्टेबिलिटी देखेंगे, वॉलेटिलिटी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि एक ग्राउंड तैयार होगा फॉर द टाइम्स टू कम। क्या ये माना जाए जैसे कि अमेरिकी में नैस्डैक में 3% से अधिक की तेजी रही, S&P 500 में भी 1.5% तेजी रही, इस तरह के आंकड़े काफी लुभाते हैं, तो अमरीकी बाजार कितना निवेश आकर्षित करने में कायम हो पाएंगे, क्योंकि वहां के फेडरल रिजर्व के प्रमुख ने भी काफी बेहतर उम्मीदें जगाई हैं। देखिए, अमेरिका के बाजार, पहली बात तो है कि नैस्डैक जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टॉक्स को दर्शाता है, वहां पर बहुत भारी गिरावट आई थी। पिछले साल करीब 35% नैस्डैक इंडेक्स गिरा था। भारत का इंडेक्स इन कंपैरिजन 4% बढ़ा था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका में बहुत ज्यादा गिरावट आई थी लास्ट ईयर। तो कुछ हद तक आप ये कह सकते हैं कि वहां पर अब मार्केट्स रिकूप कर रही हैं, थोड़ा जो लॉसेस थे उनको थोड़ा वापस आ रहे हैं। दूसरा, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर के शेयर्स बहुत ज्यादा गिर गए थे, खासतौर से मैं कहूंगा कि फेसबुक जैसे शेयर जो बहुत गिर गए थे, अब हमने देखा कि अचानक एक बहुत बड़ी तेजी आई, वो एक अच्छा संकेत भी है। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो पुराना एक वैल्यूएशन थी आईटी सेक्टर की अमेरिका में, वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज उनको ग्रोथ अब उतनी नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जो कुछ रिपेयर या रिकूप ऑफ लॉसेज अमेरिका में होगा। भारत जैसे देशों में जहां बहुत ज्यादा लॉसेज नहीं थे लास्ट ईयर, वहां पर स्टेबिलिटी सी रहेगी। तो ऐसा एक मिक्स्ड सिनेरियो ग्लोबल मार्केट्स में हो सकता है। कच्चे तेल के बाजार की अगर बात करें, तकरीबन $82 अगर ब्रेंट है, तो वहीं WTI क्रूड जो है वो भी तकरीबन $76 के आसपास बना हुआ है। इसमें भी थोड़ी सी नरमी जो आ रही है,
कितनी राहत की उम्मीदें हैं भारतीय उपभोक्ताओं के लिए और भारतीय तेल कंपनियों के लिए, और साथ ही साथ वैश्विक बाजारों के लिए भी? देखिए अमित, इनफैक्ट अगर आप इन्फ्लेशन को देखें, और इन्फ्लेशन का जो बिल्कुल एक बड़ा थ्रेट पूरे इकोनॉमीज के लिए था, उसका जो मेन कारण था वो ऑयल प्राइसेस थे। बिकॉज ऑयल प्राइसेस बहुत तेजी देखी थी हमने 2021-22 में, और उस वजह से हमने इन्फ्लेशन में काफी पिकअप देखा था। तो मुझे लगता है कि अगेन अगर आप पिछले कई महीनों को देखें तो ऑयल करीब $80 के आसपास स्टेबलाइज हुआ है। $80-82 ब्रेंट ऑयल की ट्रेडिंग चल रही है, और अगेन मुझे लगता है कि ये पीक लेवल्स हैं ऑयल के। आने वाले टाइम में ऑयल में थोड़ी नरमी रहेगी, बहुत ज्यादा तेजी अब यहाँ से हम नहीं देख रहे। तो उससे इकोनॉमीज में जो इन्फ्लेशन की बात करी हमने वो थोड़ा सा सॉफन होगा। दूसरा, एक बड़ी जो देश जो है और जो फेस करते हैं चैलेंजेस इंपोर्ट्स में, उनके लिए भी थोड़ी राहत रहेगी। तो मुझे लगता है ऑयल के फ्रंट पर ग्लोबल इकोनॉमी में अच्छी न्यूज रहेगी, थोड़ा जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी कम होंगी और थोड़ी राहत रहेगी सभी कंज्यूमर्स के लिए, भारत में भी और बाहर भी। Puneet, doing a little zoom out right now, when we look at the different factors that have actually affected global economies, India has come out relatively unscathed. Our policies, our resilience, whether it was COVID, the Ukraine war, our managing oil pricing, inflation, everything. Now, there is a sense, and if you project this 3 years hence from now, there is definitely, the world is looking at India in a little different way in terms of an economic power. There is a financial flux in Europe and in the Western countries where we invariably were looking westwards, and now there is a look eastward policies in more ways than one, including economic investment. Do you think that we would be able to, with the current policies, the budget, the way the government is going, take this and actually use this time, the way we have managed this crisis or these crises, to actually build faith rather than just numbers? Numbers say something, but there is a kind of a trust that has been built up. So, interestingly, the global order is changing rapidly has changed a lot in last few years, and I think it's going to change very rapidly in the next decade. Right. Fortunately, in that changing global order, India has a very special place. And that is, of course, because of a lot of positive things that India has done, the government has done, and created space for India in a very, earlier we had a very globalized kind of economy where China was dominating everything in supply chains. India is now trying to become strong economically by itself and also trying to emerge as a source of manufacturing. India, in fact, never had an opportunity in manufacturing. Right. I think will emerge as a major global economy in the next 10 years. नजर डाल लेते सरफा बाजार पे। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के फरवरी के वायदा कारोबार में सोना 27 रुपए की मामूली गिरावट से 57,668 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। चांदी भी 124 रुपए के नुकसान से 70,080 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। वैश्विक बाजार में सोना गिरावट से $1,926.20 प्रति औंस के स्तर पर रहा। चांदी भी गिरावट से $23.24 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई। पुनीत, बहुत संक्षेप में सोने की चमक को फीकी करती हुई चांदी कितनी आगे तक जाएगी? तकरीबन 71,000 या 80,000 के स्तर को छूने की कितनी संभावनाएं नजर आती हैं? अमित, बिल्कुल ये डिबेट आप जानते हैं कि काफी दिन से चल रहा है। मुझे लगता है जो प्रेशियस मेटल्स हैं, गोल्ड और सिल्वर, दोनों ही अभी आगे और उनके लिए पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट है, और क्योंकि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं ये दोनों प्रेशियस मेटल्स, मुझे लगता है गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही प्राइसेस ऊपर की ओर रहेंगे आने वाले एटलीस्ट इन द नेक्स्ट फोर्सिएबल फ्यूचर। जी पुनीत, कार्यक्रम में चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। Puneet, thank you for coming on to our program. And yes, now before we close, a reminder of the headlines. Domestic markets witness gains of about 1.5%. Sensex closes above 60,800 points. Nifty settles above 17,850 level. SBI Q3 profit jumps 68.5%. Bank of Baroda profit rises 75%. Rupee appreciates by 34 paise against the dollar. And global crude prices rise to trade around $81.93 per barrel. आर्थिक सुर्खियों पर एक नजर फिर। घरेलू शेयर बाजार में लगभग 1.5% की तेजी। सेंसेक्स 60,800 और निफ्टी 17,850 के स्तर से ऊपर दर्ज हुआ।
तीसरी तिमाही में स्टेट बैंक के शुद्ध मुनाफे में 68.5% और बैंक ऑफ बड़ौदा के शुद्ध मुनाफे में 75% की भारी बढ़ोतरी। डॉलर के मुकाबले रुपया 34 पैसे मजबूत हुआ और वैश्विक बाजारों में कच्चा तेल $81.93 प्रति बैरल के स्तर पर दर्ज हुआ। और आज के कार्यक्रम में आज की इतनी ही सीमाएं, और कल हम फिर हाजिर होंगे आपके प्रश्नों के साथ। तो याद करना और सुनना न भूलिएगा मार्केट मंत्र।